નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. હું છું આપની સાથે દીપા શર્મા. મહત્વપૂર્ણ સમાચાર. દાહોદથી મહિલાને તાલિબાની સજા અપાઈ. પ્રેમીને મળવા જતા પરિણીતાને ગ્રામજનોએ ઝડપી લીધી. પરિણીતાને માર મારી અને સરઘસ કાઢ્યું. અર્ધનગ્ન હાલતમાં મહિલાનું સરઘસ કઢાયું. સંજેલીના ઢાલ સુમળ ગામની ઘટનાથી ચકચાર મચી ગઈ છે. 15 લોકોના ટોળાએ 35 વર્ષીય મહિલાને અર્ધનગ્ન કરીને માર માર્યો. ત્યારબાદ બાઇકના કેરિયર ઉપર બેસાડી ગામમાં ફેરવી હતી. દાહોદમાં આજે ઘટના બની છે તે વધુ એક વખત પુરાવો આપી રહી છે તાલિબાની સજાનો. પોલીસે 15 સામે ગુનો નોંધીને તપાસ શરૂ કરી છે, પરંતુ અહીં સવાલ એ કે જો પરિણીતાએ પોતાના પ્રેમીને મળવા પણ ગઈ તો પણ તેને સજા આપવાવાળી આ જે મહિલાઓ છે તે કોણ હોય છે? કાયદાનો સહારો લઈને પણ ગ્રામજનો આગળ વધી શક્યા હોત, પરંતુ તેમણે મહિલાને માર માર્યો, ઠોર માર મારી અને ત્યારબાદ સરઘસ પણ કાઢ્યું. ગ્રામજનોએ આ મહિલાને ઝડપી અને ત્યારબાદ અર્ધનગ્ન હાલતમાં મહિલાનું સરઘસ કઢાવ્યું. સંવાદદાતા સૌરભ જોડાઈ ગયા છે વધુ જાણકારી સાથે. સૌરભ, શું ઘટનાક્રમ? બિલકુલ કહી શકાય કે સંજેલીના ઢાળ સિમળિયા ગામે જે 35 વર્ષીય પાણીત મહિલાને 15 જેટલા ઇસમોએ ઘરમાંથી બહાર કાઢી અર્ધનગ્ન કરી અને માર મારતો વિડીયો જે છે એક સોશિયલ મીડિયા ઉપર વાયરલ થવા પામ્યો હતો. મહિલા સાથે મારઝૂડ કર્યા બાદ તેને મોટરસાયકલ પર પાછળ બાંધી અને તેનો ગામમાં જે સરઘસ નીકાળવામાં આવ્યું હતું. જો કે કહી શકાય કે અત્યારે જે વાયરલ વિડીયોના આધારે પોલીસ દ્વારા 15 જેટલા ઇસમોને અટકાયત પણ કરી લેવામાં આવી છે. પરંતુ એક વાત છે કે જે પ્રેમીને મળવા ગઈ હતી ત્યારબાદ જે પ્રેમિકા છે પકડાઈ ગઈ હતી, ત્યારે ગ્રામજનો દ્વારા આ મહિલાને તાલિબાની સજા આપી હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. અગાઉ પણ ફતેપુરા વિસ્તાર હોય, ધાનપુર વિસ્તાર હોય, દાહોદ જિલ્લાના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં આવા પ્રકારની મહિલાઓ સાથે અત્યાચારની ઘટના તો બની હતી, પરંતુ આ જે છે ઢાળ સિમળિયા ગામે ખૂબ જ એક કરુણ ઘટના બનવા પામી હતી, જેમાં 35 વર્ષીય પરિણીતા મહિલાને 15 જેટલા ઇસમોએ ઘરમાંથી બહાર કાઢી અને અર્ધનગ્ન કરી અને બાઇક પાછળ જે સાંકળ વડે બાંધી અને ત્યારબાદ તેનો ગામમાં આ રીતનો વરઘોડો કાઢવો આ કેટલું શોભનીય છે તે કેટલું અશોભનીય છે તે એક મોટો સવાલ ઉભો થવા પામ્યો છે. કારણ કે અત્યારે જે મહિલાઓ પણ તેના હાથમાં લાકડી અને મારક જે હથિયારો હોય છે તેના સાથે વિડીયોમાં જોવા મળ્યા હતા. આભાર સૌરભ, જાણકારી આપવા માટે. સમાચારોમાં આગળ વધીએ. સંઘ પ્રદેશ દમણમાં યુવકોને બાઇક પર સ્ટન્ટ કરવો ભારે પડ્યો. સીન સપાટા કરવા જતા યુવક ચાલુ બાઇક પરથી નીચે પટકાયો. સ્ટન્ટબાજનો વિડીયો નાની દમણ કલરિયા રોડ પરનો છે, જેમાં બાઇક સવાર યુવક પૂર ઝડપે દોડતા બાઇક પર ઉભા રહી સ્ટન્ટ કરી રહ્યો છે. જે દરમિયાન તે કાબુ ગુમાવતા યુવક બાઇક પરથી નીચે પટકાઈ છે. જો કે પાછળ બેઠેલા યુવકે ત્વરિત બાઇકનું સ્ટીયરિંગ પકડી લેતા તે બચી ગયો હતો અને નીચે પટકાયેલા યુવકને ઈજા પહોંચે છે. જે વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ કર્યો. પોતાની સાથે અન્ય લોકોના જીવ જોખમમાં મૂકનાર સામે દમણ પોલીસ એક્શનમાં આવી છે અને મામલાને ગંભીરતાથી લઈ કચ્ચીગામ પોલીસ સ્ટેશનમાં જોખમી સ્ટન્ટ કરનાર બાઇક સવાર યુવક વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. સુરેન્દ્રનગરથી સમાચાર. રતનપરમાં તોફાની તત્વો બેફામ બન્યા. ઘાતક હથિયારો સાથે આતંક મચાવ્યો. 20 થી વધુ શખ્સોએ હુમલો કરી તોડફોડ કરી. હથિયારો સાથે 5 કારમાં તોડફોડ કરાઈ. લાકડી, પાઇપ અને ફરસી સહિતના હથિયારો સાથે અસામાજિક તત્વો તૂટી પડ્યા. પથ્થરમારામાં એક મહિલા ઇજાગ્રસ્ત થઈ. અગાઉના ઝઘડાના મંદુક બાબતે હુમલો કરાયો હતો. देश के गौरव और लोकतांत्रिक मूल्यों को सलाम करने जैसा होता है. भारतीय संस्कृति में राष्ट्रपति का संसद में प्रवेश अतिथि सत्कार की भावना से भी जुड़ा है. गॉड ऑफ ऑनर और सम्मान समारोह इस बात का प्रतीक है कि हम अपने संवैधानिक प्रमुख का सम्मान किस गहराई और किस आत्मसम्मान के साथ करते हैं. ये पारंपरिक सम्मान केवल राष्ट्रपति के लिए
તો રાષ્ટ્રપતિ સંસદ ભવન પહોંચ્યા છે। અહીં પહેલા તેમનું અભિભાષણ થશે અને ત્યારબાદ નાણામંત્રી આર્થિક સર્વેક્ષણ રજૂ કરશે। રાષ્ટ્રપતિ બંને ગૃહોને સંબોધવાના છે। લોકસભા સ્પીકરને આપ જોઈ શકો છો, ઓમ બિરલા અહીં ઉપસ્થિત છે, પ્રધાનમંત્રી મોદી હાજર છે, રક્ષામંત્રી રાજનાથ સિંહ, ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, આ સિવાય જેપી નડ્ડાની પણ ઉપસ્થિતિ, ઉપરાષ્ટ્રપતિ જગદીપ ધનખડ પણ નજરે પડી રહ્યા છે। અત્યારે રાષ્ટ્રગાન ચાલી રહ્યું છે અને ત્યારબાદ સંસદની કાર્યવાહી આગળ વધશે। રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણથી આ બજેટ સત્રનો પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે। કાલે નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ જે બજેટ રજૂ કરશે તે પહેલા આજે રાષ્ટ્રપતિનું અભિભાષણ। ઘણા બધા મુદ્દાઓ છે, કારણ કે જે રીતે આર્થિક વિકાસ થઈ રહ્યો છે દેશનો, माननीय सदस्य, संसद की इस बैठक को संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। अभी 2 माह पहले हमने संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मनाए हैं और कुछ दिन पहले ही भारतीय गणतंत्र ने 75 वर्षों की यात्रा भी पूरी की है। ये अवसर लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत के गौरव को नई ऊंचाई देगा। मैं सभी देशवासियों की तरफ से बाबा साहेब आम्बेडकर समेत सभी संविधान निर्माताओं को नमन करती हूँ। माननीय सदस्यगण, इस समय देश में महाकुंभ का ऐतिहासिक पर्व भी चल रहा है। महाकुंभ भारत की सांस्कृतिक परंपरा का, भारत की सामाजिक चेतना का पर्व है। देश और दुनिया से आए करोड़ों श्रद्धालुओं प्रयागराज में पूर्ण स्नान कर चुके हैं। मैं मोनो अमावस्या के दिन हुई हादसे पर अपना दुख व्यक्त करती हूँ। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। कुछ दिन पहले ही हमने देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को खोए हैं। मनमोहन सिंह जी ने 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की। वे लंबे समय तक संसद के सदस्य भी रहे। मैं मनमोहन सिंह जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। माननीय सदस्यगण, भारत की विकास यात्रा की इस अमृतकाल को आज मेरी सरकार अभूतपूर्व उपलब्धियों के माध्यम से नई ऊर्जा दे रही है। तीसरे कार्यकाल में 3 गुना तेज गति से काम हो रहा है। आज देश बड़े निर्णयों और नीतियों को असाधारण गति से लागू होते देख रहा है और इन निर्णयों में देश की गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, महिलाओं, किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली। मेरी सरकार ने तीसरे कार्यकाल में सभी के लिए आवास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ठोस कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार करते हुए 3 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को नए घर देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 5,36,000 करोड़ रुपया खर्च किए जाने की योजना है। मेरी सरकार गांव में गरीबों की उनकी आवासीय भूमिका हक देने और वित्तीय समावेशन के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में स्वामित्व योजना के अंतर्गत अब तक 2 करोड़ 25 लाख स्वामित्व कार्ड जारी किए गए। इनमें से करीब 70 लाख स्वामित्व कार्ड पिछले 6 महीने से जारी किए। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत करोड़ों किसानों को पिछले महीने में 41,000 करोड़ रुपया की राशि का भुगतान हुआ है। जनजातीय समाज के 5 करोड़ लोगों के लिए धरती व जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान प्रारंभ हुआ है। इसके लिए 80,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 70 वर्षों और उससे अधिक उम्र के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा देने का फैसला हुआ है।
इन्हें हर वर्ष 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलेगा। छोटे उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़कर 20 लाख रुपया कर दी गई है। मेरी सरकार ने युवाओं की शिक्षा और उनके लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करने पर विशेष फोकस किया है। मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा में वित्तीय सहायता देने के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना शुरू की गई है। 1 करोड़ युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर भी दिए जाएंगे। पेपर लीक की घटनाओं को रोकने और भर्ती में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नया कानून लागू किया गया है। सहकार से समृद्धि की भावना पर चलते हुए सरकार ने त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में 25,000 बस्तियों को जोड़ने के लिए 70,000 करोड़ रुपया स्वीकृत किए। आज जब हमारा देश अटल जी की जन्म शताब्दी का वर्ष मना रहा है, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उनके विजन का पर्याय बनी हुई है। देश में अब 71,000 वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत ट्रेन चल रही है, जिनमें पिछले 6 माह में ही 17 नए वंदे भारत और 1 नमो भारत ट्रेन को जोड़ा गया है। वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ अधिनियम संशोधन जैसे कई महत्वपूर्ण विषय पर भी सरकार ने तेज गति से कदम आगे बढ़ाए हैं। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार के 1 दशक के कार्यकाल ने विकसित भारत की यात्रा को नई ऊर्जा दी है। विकसित भारत के विजन में जन भागीदारी का सामूहिक सामर्थ्य है, देश की आर्थिक उन्नति का रोड मैप है, डिजिटल क्रांति के रूप में टेक्नोलॉजी की ताकत है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर आधार भी है। मेरी सरकार के प्रयास के बल पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। विकसित भारत की उड़ान को हमारे संविधान के आदर्शों का सतत मार्गदर्शन मिलता रहे, इसके लिए सरकार ने सेवा, सुशासन, समृद्धि और स्वाभिमान इन प्रमुख सिद्धांतों को गवर्नेंस के केंद्र में रखा है। सरकारी फर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के अपने संकल्पों को तेज गति से आगे बढ़ा रही है। मेरी सरकार का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और इस मंत्रों का एक ही लक्ष्य है, विकसित भारत का निर्माण। माननीय सदस्यगण, जब देश के विकास का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी मिलने लगता है, तो भी विकास सार्थक होता है। मेरी अंत्योदय की वह भावना है जिसके प्रति मेरी सरकार संकल्पित रही है। गरीब को गरिमापूर्ण जीवन मिलने से उसमें जो सशक्तिकरण का भाव पैदा होता है और गरीबी से लड़ने में उसकी मदद करता है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत बने 12 करोड़ शौचालय, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क दिए गए 10 करोड़ गैस कनेक्शन, 80 करोड़ जरूरतमंदों का राशन, सौभाग्य योजना, जल जीवन मिशन जैसे अनेक योजनाओं में गरीब को ये भरोसा दिया गया है कि वे सम्मान के साथ जी सकते हैं। ऐसे ही प्रयासों की वजह से देश के 25 करोड़ लोग गरीबों को परास्त करके आज अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने न्यू मिडिल क्लास का एक ऐसा समूह तैयार किया है जो भारत की ग्रोथ को नई ऊर्जा से भर रहा है। माननीय सदस्यगण, भारत जैसे देश की आर्थिक उन्नति मध्यम वर्ग मिडिल क्लास की आकांक्षाओं और उनकी पूर्ति से परिभाषित होती है। मध्यम वर्ग जितने बड़े सपने देखेगा, देश उतने ही ऊंचा उड़ान भरेगा। मेरे सरकार ने मुक्त स्वर से मध्यम वर्ग के योगदान को न केवल स्वीकारा है, बल्कि हर मौके पर उसे सराहा भी है। सरकारी कर्मचारी भी मिडिल क्लास
के अहम प्रतिनिधि है। हाल ही में मेरी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के कल्याण के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया है। ये निर्णय आने वाले वर्षों में सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बड़ी वृद्धि का आधार बनेगा। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों का यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत 50% सुनिश्चित पेंशन देने का निर्णय भी लिया गया है, जिसका व्यापक स्वागत हुआ है। मध्यम वर्ग का अपने घर का सपना पूरा करने के लिए भी मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। रेरा जैसे कानून बनाकर मध्यम वर्ग के सपने को सुरक्षा दी गई है। घर के लिए लोन पर सब्सिडी दी जा रही है। उड़ान योजना ने लगभग 1.5 करोड़ लोगों का हवाई जहाज में उड़ने का सपना पूरा किया गया है। जन औषधि केंद्रों में 80% रियायती दरों पर मिल रही दवाओं से देशवासियों की 30,000 करोड़ रुपये से ज्यादा बचे हैं। हर विषय की पढ़ाई के लिए सीटों की संख्या में भी कई गुना बढ़ोतरी का बहुत लाभ मध्यम वर्ग को मिला है। राष्ट्र निर्माण में करदाता के योगदान को मेरी सरकार ने सम्मान देते हुए टैक्स से जुड़े मसलों को आसान किया है। टैक्स विवादों को कम करने के लिए फेसलेस मूल्यांकन की शुरुआत कर पारदर्शिता बढ़ाई गई है। आप देश में 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को जिन्हें सिर्फ पेंशन मिलती है, आयकर रिटर्न दाखिल करने के संबंध में स्वयं निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार महिलाओं के नेतृत्व में देश को सशक्त बनाने में यानी ह्यूमन लेड डेवलपमेंट में विश्वास करती है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 91 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को सशक्त किया जा रहा है। देश की 10 करोड़ से भी अधिक महिलाओं को इसके साथ जोड़ा गया है। इन्हें कुल 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि बैंक लिंकेज के माध्यम से वितरित की जा रही है। मेरी सरकार का लक्ष्य देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का है। आज 1 करोड़ 15 लाख से भी अधिक लखपति दीदी एक गरिमामयी जीवन जी रहे हैं। इनमें से लगभग 50 लाख लखपति दीदी बीते 6 महीने में बनी है। ये महिलाएं एक उद्यमी के रूप में अपने परिवार के आय में योगदान दे रहे हैं। इंश्योरेंस फॉर ऑल की भावना के साथ कुछ महीने पूर्व ही बीमा सखी अभियान भी शुरू किया गया है। हमारे बैंकिंग और डिजी पेमेंट्स सखियां दूर दराज के इलाकों में लोगों को वित्तीय व्यवस्था से जुड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कृषि सखियां नेचुरल फार्मिंग के बढ़ावा दे रही हैं और पशु सखियां के माध्यम से हमारा पशुधन मजबूत हो रहे हैं। ड्रोन दीदी योजना महिलाओं के आर्थिक और तकनीकी सशक्तिकरण का माध्यम बने हैं। ये इस संसद के लिए गौरव का विषय है कि बड़ी संख्या में भारत की बेटियां लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं, पुलिस में भर्ती हो रही हैं और कॉरपोरेट कंपनियों का नेतृत्व भी कर रहे हैं। मेरी सरकार के निर्णय के बाद बालिकाओं की भर्ती राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों में प्रारंभ हो गई है। नेशनल डिफेंस एकेडमी में भी महिला कैडेट्स को भर्ती शुरू की गई है। हमारी बेटियां आज ओलंपिक में मेडल लाकर देश को भी गौरवान्वित कर रही हैं। मैं भारत की संसद के माध्यम से देश की नारी शक्ति को विशेष बधाई देती हूँ। माननीय सदस्यगण, पिछले 1 दशक में देश के हर बड़े प्रयास का दायित्व आगे बढ़कर भारत के युवाओं को उठाना पड़ा है। आज
हमारा युवा स्टार्टअप स्पोर्ट्स से लेकर स्पेस तक हर फील्ड में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। माय भारत पोर्टल के जरिए लाखों युवा राष्ट्र निर्माण के कार्य से जुड़ रहे हैं। पिछले एक दशक में मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहल ने युवाओं को रोजगार के अनेक अवसर प्रदान किए हैं। पिछले 2 वर्षों में सरकार ने रिकॉर्ड संख्या में 2 लाख स्थायी सरकारी नौकरियां प्रदान की गई। मेरी सरकार ने युवाओं के बेहतर कौशल और नए अवसरों के सृजन के लिए 2 लाख करोड़ रुपया का पैकेज स्वीकृत किया है। 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप की व्यवस्था से युवाओं को ग्राउंड पर काम करने का अनुभव प्राप्त होगा। आज देश में 1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप है जो इनोवेशन के स्तंभ के रूप में उभर रहे हैं। 1000 करोड़ रुपया की लागत से स्पेस सेक्टर में वेंचर कैपिटल फंड की शुरुआत की गई है। यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत विश्व में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। यानी फ्यूचर ऑफ वर्क श्रेणी में एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी अपनाने में भारत दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी भारत की रैंकिंग 76 से सुधार कर 39 हो गए हैं। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए आधुनिक शिक्षा व्यवस्था तैयार कर रही है। कोई भी शिक्षा से वंचित ना रहे, इसीलिए मातृभाषा में शिक्षा के अवसर दिए जा रहे हैं। विभिन्न भर्ती परीक्षाएं 13 भारतीय भाषाएं में आयोजित कर भाषा संबंधी बाधाओं को भी दूर किया गया है। बच्चों में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 10,000 से अधिक स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स खोली गई है। ईज ऑफ डूइंग रिसर्च के लिए हाल ही में 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन स्कीम लागू कर दिया है। इससे अंतर्राष्ट्रीय शोध की सामग्री निःशुल्क उपलब्ध हो सकेगी। पिछले 1 दशक में उच्च शिक्षण संस्थाओं की संख्या बढ़ी है। इनकी गुणवत्ता में भी व्यापक सुधार हुआ है। यूएस विश्व यूनिवर्सिटी एशिया रैंकिंग में हमारे 163 विश्वविद्यालय शामिल हुई है। नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का शुभारंभ कर शिक्षा में भारत का पुराना गौरव वापस लाया गया है।